یہ ZBC کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین. یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے. منگل 21 جولائی کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام. امریکہ کا ایران پر مزید حملہ کرنے کا دعویٰ. ایران کا کہنا ہے کہ اس نے کویت اور بحرین میں امریکہ کے میزائل نظام اور متعدد ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ اردن میں امریکی F-15 طیارہ بھی تباہ کر دیا ہے. جبکہ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ اس ماہ ایرانی حملوں میں تقریباً 100 امریکی فوجی اہلکار زخمی ہوئے ہیں. دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ نے متنبع کیا ہے کہ ایران اور اس کے حامی گروہ دنیا بھر میں امریکی مفادات کو نشانہ بنا سکتے ہیں. گریٹ مانچسٹر کے سابق میئر اینڈی برنم برطانیہ میں لیبر پارٹی کے لیڈر منتخب ہونے کے بعد اب 4 سالوں میں ملک کے 5ویں وزیر اعظم. برطانیہ میں پچھلے 4 سالوں میں 4 وزیر اعظم آ چکے ہیں اور 5واں آج حلف اٹھائے گا. جو لوگ اسی صدی میں پیدا ہوئے ہیں انہوں نے پاکستان کی 90s نہیں دیکھی جب 4 بار وزیر اعظم بدلے اور ایک ملٹری ڈکٹیٹر آیا. پاکستان کی تاریخ میں تو ایسی دہائیاں اور بھی ہیں، لیکن برطانیہ کی صدیوں پرانی جمہوری تاریخ میں یہ ایک نیا اور پریشان کن موڑ ہے. یمن کے حوثی گروہ کا سعودی عرب کے خلاف باب المندب میں بحری ناکہ بندی کا اعلان. في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير. حماس نے خلیل الحیہ کو اپنا نیا سربراہ منتخب کر لیا. التي يستعملها نتنياهو وحكومته. بھارت میں کاکروچ جنتا پارٹی کے جنتر منتر پر موجود مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں. کاکروچ جنتا پارٹی کے جنتر منتر کے مقام پر بنے سٹیج کو ہٹا دیا گیا. دلی پولیس کی طرف سے لاٹھی چارج کا بھی استعمال ہوا اور آنسو گیس کا بھی استعمال ہوا. بہت خراب محسوس کر رہے ہیں، اپنے ہی دیش میں ایسا محسوس کر رہے ہیں جیسے ہم غلام ہو گئے. چاروں طرف سے فورس نے ہمیں گھیر رکھا ہے. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کو ریاست کا درجہ دینے کے لیے دلی میں احتجاج. اور پاکستان کے شہر لاہور میں تاریخی جگہوں کے نام کیوں تبدیل کیے جا رہے ہیں؟ انڈین میڈیا میں ایک خبر بہت زور و شور سے چلائی گئی کہ پاکستان میں پنجاب کی سرکار نے لاہور کے پرانے علاقوں، سڑکوں اور چوکوں کے نام وہ نام ریسٹور کر دیے ہیں جو کہ ہندو، سکھ اور کلونیل دور میں رائج تھے. لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ اس کے علاوہ مزید خبریں بھی آج کے سیربین کا حصہ رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ. ایران اور امریکہ کے درمیان جاری فوجی کشیدگی مزید شدت اختیار کر گئی ہے. ایران کے پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اردن میں ایک امریکی F-15 لڑاکا طیارے کو اس کے ہینگر میں تباہ کرنے کے علاوہ بحرین کے المراق اور الرفا اور کویت کے احمد الجابر اور عرفان اڈوں پر موجود امریکی ریڈار، فضائی دفاعی نظام HIR مارس میزائل اور دیگر فوجی تنصیبات کو میزائلوں اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا ہے. ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں امریکی دفاعی صلاحیت کو نقصان پہنچا ہے. تاہم امریکہ، کویت، بحرین اور اردن کی جانب سے ان دعووں کی ابھی تک آزادانہ تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی ہے. دوسری جانب پینٹاگون نے تصدیق کی ہے کہ رواں ماہ ایران کے حملوں میں تقریباً 100 امریکی فوجی اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے زیادہ تر علاج کے بعد دوبارہ ڈیوٹی پر واپس آ چکے ہیں. جبکہ گزشتہ ہفتے اردن اور عراق میں ہونے والے حملوں میں متعدد امریکی فوجیوں کی ہلاکت بھی ہوئی تھی. اسی دوران امریکی فوج کی مرکزی کمان یعنی سینٹ کام نے ایران میں کمانڈ سینٹرز، میزائل اور ڈرون لانچ سائٹس، بحری تنصیبات اور فضائی دفاعی نظام پر مزید حملوں کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ان کارروائیوں کا مقصد آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنانا اور ایران کی عسکری صلاحیت کو محدود کرنا ہے. ادھر خطے میں سمندری صورتحال بھی مزید کشیدہ ہو گئی ہے. برطانیہ کے ادارے UK میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق آبنائے ہرمز کے جنوب میں ایک تیل بردار جہاز میزائل حملے کا نشانہ بنا، جس کے بعد عملے کو لائف بوٹس کے ذریعے محفوظ مقام پر منتقل کرنا پڑا. جبکہ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے خلاف ورزی کرنے والے 2 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا، تاہم ان اطلاعات کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی. امریکی محکمہ خارجہ نے مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر دنیا بھر میں موجود امریکی شہریوں اور سفارتی تنصیبات کے لیے سیکیورٹی الرٹ جاری کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ایران یا اس کے حامی گروہ امریکی مفادات کو نشانہ بنا سکتے ہیں. جبکہ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور پروازوں میں ممکنہ رکاوٹوں کے لیے تیار رہنے کی ہدایت دی گئی ہے. دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ اگر کسی بھی امریکی فوجی کو نقصان پہنچا تو ایران کو اس کی کئی گنا زیادہ قیمت چکانا پڑے گی، جس کے باعث خطے میں وسیع تر تصادم کے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں.
यमन के हुसी जंगजुओं के फौजी तर्जुमान याहिया ने सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर दिया है। याहिया सरी के बयान में कहा गया है कि दुश्मन सऊदी अरब यमन का नाइंसाफी पर मबनी और जालिमाना मुहासरा जारी रखे हुए है, इसलिए अब से आंख के बदले आंख के असूल के तहत कार्रवाई की जाएगी। في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير. The Yemeni armed forces announces a ban on maritime navigation for the Saudi enemy. According to the rules of a blockade, the siege will be implemented as soon as we have issued this statement. Our people have the right to respond to a blockade with a blockade and escalation with escalation. बयान में सऊदी अरब को कशीदगी में इजाफे से खबरदार करते हुए कहा गया है कि हुसी ग्रुप तमाम मुमकिन हालात के लिए तैयार है। यमन के हुसी जो खुद को इंसारुल्लाह कहते हैं, मुल्क के मगरबी हिस्से के तकरीबन 1/3 इलाके पर काबिज हैं। खलीज के साहिली इलाकों और अदन की बंदरगाह के अलावा बेशतर इलाकों पर उनका कंट्रोल है, जबकि ये मुकामात साबिक यमनी हुकूमत की हिमायत याफ्ता फोर्सेस के जेर असर हैं। हुसियों के पास दारुल-हुकूमत सना, अहम बंदरगाह हुदैदा और बहरा अहमर के बेशतर साहिली इलाके मौजूद हैं। ये ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब 4 जुलाई को ईरान की महान एयर की एक प्रवास तेहरान से सना पहुंची, तहम चंद घंटे बाद वापस तेहरान रवाना हो गई। ये 11 साल बाद तेहरान से सना के लिए पहली प्रवास थी। गुज़िश्ता हफ्ते तेहरान से आने वाली दूसरी प्रवास सना के हवाई अड्डे के रनवेज पर बमबारी के बाइस हुदैदा एयरपोर्ट पर उतरी और चंद घंटे बाद वापस तेहरान रवाना हो गई। अदन में कायम सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता यमनी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि महान एयर की सना के लिए प्रवास उसकी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी है। दूसरी जानब ईरान के इत्तेहादी हुसी सना पर आयद फ़िज़ाई नाकाबंदी को गैर कानूनी करार देते हैं। माहिरीन का कहना है कि यमन बहरा अहमर में वाक़े आबनाए बाबुल बंदब को बंद करके ईरान की जानिब से खलीज फारस में आबनाए हुर्मुज़ पर आयद पाबंदियों जैसी सूरत हाल पैदा कर सकता है, जिसके नतीजे में आलमी तवानाई की मंडियों को बड़ा धचका लग सकता है। माहिरीन के मुताबिक बाबुल मंदब की बंदिश आलमी तिजारत और तेल की तरसील पर नुमाया असर डाल सकती है, क्योंकि ये दुनिया के अहम तरीन बहरी रास्तों में शुमार होती है। फ़लस्तीनी तंजीम हमास ने एक बयान में ऐलान किया कि खलील अल-हय्या को तंजीम का नया सरबरा मुंतखब कर लिया गया है। वो याहिया सिनवार के जानशीन होंगे जो अक्टूबर सन 2024 में गजा में इसराइली फौज के एक हमले में मारे गए थे। हमास के साबिका रहनुमाओं बाशमूल इस्माइल हनिया, याहिया सिनवार और मोहम्मद हनीफ समेत तंजीम के दीगर अहम रहनुमाओं की इसराइली हमलों में हलाकत के बाद खलील अल-हय्या का किरदार और असर व रसूख नुमाया तौर पर बढ़ा है। लेकिन सवाल यह है कि खलील अल-हय्या कौन है? खलील अल-हय्या सन 1960 में गजा पट्टी में पैदा हुए और सन 1987 में हमास के क़याम के वक्त से ही इस तंजीम के रुकन रहे हैं। याहिया सिनवार के नायब और हमास के सीनियर ओहदेदार खलील अल-हय्या को इस ओहदे के लिए एक मजबूत उम्मीदवार समझा जा रहा था। गजा से बाहर मौजूद हमास की क़यादत में खलील अल-हय्या एक इंतहाई सीनियर ओहदेदार हैं। कतर में खलील अल-हय्या ने हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के लिए होने वाले मुज़ाकरात में हमास के वफ्द की क़यादत भी की है। खलील अल-हय्या के बारे में कहा जाता है कि वो गजा की सूरत हाल के बारे में गहरी मालूमात, राब्ते और तफहीम रखते हैं। याहिया सिनवार के बाद खलील अल-हय्या ने सियासी व खारिजी उमूर की जिम्मेदारी संभाली है। वो अब तक गजा के मामलात की बराह रास्त निगरानी कर रहे थे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल सितंबर में दोहा में हमास के रहनुमाओं पर इसराइली हमला हुआ था, जिसमें इसराइली फौज ने खलील अल-हय्या और उनके साथियों को निशाना बनाया था। ग्रेटर मैनचेस्टर के साबिक मेयर एंडी बुर्नम बरतानिया में लेबर पार्टी के लीडर मुंतखब होने के बाद अब 4 सालों में मुल्क के 5वें वजीर आज़म बन गए हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बरतानिया में वजीर आज़म इतनी तेज़ी से तब्दील हुए? जानिए बरतानिया की पार्लिमान के बाहर मौजूद हमारे साथी अली काज़मी से। बरतानिया में पिछले 4 सालों में 4 वज़ीर आज़म आ चुके हैं और 5वां आज हल्फ उठाएगा। जो लोग इसी सदी में पैदा हुए हैं उन्होंने पाकिस्तान की 90s नहीं देखी, जब 4 बार वज़ीर आज़म बदले और एक मिलिट्री डिक्टेटर आया। पाकिस्तान की तारीख में तो ऐसी दहाइयाँ और भी हैं, लेकिन बरतानिया की सदियों पुरानी जमहूरी तारीख में ये एक नया और परेशान कुन मोड़ है। पिछले 10 सालों में 7 वज़ीर आज़म तब्दील हुए हैं और सूरत हाल अब भी ज़्यादा स्टेबल नहीं। ये बिल्डिंग वेस्टमिंस्टर है, यानी बरतानवी पार्लियामेंट। आसमान में सिक्योरिटी हेलीकॉप्टर पिछले 2-3 घंटे से उड़ रहे हैं और बिल्डिंग में भी मुरम्मत का काम जारी है, जबकि बिल्डिंग के अंदर जमहूरियत की मुरम्मत होती नज़र आ रही है। यहाँ पिछले जुम्मे को लेबर पार्टी ने अपना लीडर मुंतखब किया, एंडी बर्नम, और चूंकि अब हुक्मरान जमात का लीडर बदल गया है, इसलिए वही लीडर अब वज़ीर आज़म भी बनेगा। लेकिन इससे पहले पुराने वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने आज बकिंगम पैलेस जाकर किंग चार्ल्स को ऑफिशियली अपना इस्तीफ़ा दिया। इसके बाद एंडी बर्नम ने किंग चार्ल्स से मुलाकात की और किंग ने उन्हें नई हुकूमत बनाने की पेशकश की, जो एंडी बर्नम ने ऑफिशियली मंजूर कर ली।
अब केयर स्टारमर अपना सामान समेट कर बरतानवी वज़ीर आज़म की रहायशगाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट से जा चुके हैं और एंडी बर्नम वहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि पार्टी भी वही है और सीटें भी उतनी ही हैं तो वज़ीर आज़म बदलने की क्या ज़रूरत थी, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। केयर स्टारमर को वज़ीर आज़म बने 2 साल ही हुए थे और 2024 में लेबर पार्टी को एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी, लेकिन फिर उनकी मकबूलियत एक रोलर कोस्टर की तरह नीचे आई। इसकी बहुत सी वजूहत हैं। एक वजह तो पिछले 10 साल का वो सियासी बहरान है जिसका मैंने आपको पहले बताया। दूसरी वजह यह है कि बरतानवी अवाम को लगता है कि केयर स्टारमर ने अपने इलेक्शन प्रोमिसेस पूरे नहीं किए। इसलिए तीसरी वजह यह बनी कि मई के लोकल काउंसिल इंतखाबात में लेबर पार्टी ने तकरीबन 1500 नशिस्तें हारी, जिसके बाद राइट विंग एंटी इमिग्रेशन रिफॉर्म पार्टी एक बड़ी जमात बनकर उभरी। रिफॉर्म का काउंसिल इलेक्शन में इतने बड़े पैमाने पर जीतना केयर स्टारमर के इस्तीफे का ट्रिगर था, क्योंकि लेबर पार्टी को लगा कि उनकी क़यादत में पार्टी अगले आम इंतखाबात में भी रिफॉर्म से शिकस्त खा जाएगी। एंडी बर्नम 2017 से मैनचेस्टर के मेयर थे और बहुत मकबूल थे। पिछले महीने वो एक बाई इलेक्शन में हिस्सा लेकर पार्लियामेंट के दोबारा मेंबर बने और आज वज़ीर आज़म। लेबर पार्टी और एंडी बर्नम दोनों को उम्मीद है कि उनके आने से बरतानिया में वज़ीर आज़मों की ये जो म्यूज़िकल चेयर है ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इस बात की एश्योरिटी किसी को भी नहीं। और नए वज़ीर आज़म के सर पर नाइजल फराज और रिफॉर्म पार्टी की बढ़ती मकबूलियत की तलवार अभी भी लटक रही है। बर्नम जो गुज़िश्ता माह ही रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे, जुम्मे के रोज़ हुक्मरान लेबर पार्टी के सरबराह बने। आज सुबह उन्होंने केयर स्टारमर के हमरा शाह चार्ल्स से बकिंगम पैलेस में मुलाकात की, जिसमें सुबकदोश होने वाले वज़ीर आज़म ने बादशाह को बाज़ाब्ता तौर पर अपना इस्तीफ़ा पेश किया। बादशाह ने एंडी बर्नम को नई लेबर हुकूमत बनाने की दावत दी। बर्नम कह चुके हैं कि साबिक वज़ीर आज़म के मुकाबले में उनकी हुकूमत का झुकाव ज़्यादा बाएं जानिब होगा और ये कि वो दाखिली पॉलिसी और बरतानिया में मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर तवज्जो देंगे। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू और कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा देने के लिए दिल्ली में रियासत की हुक्मरान सियासी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक मुजाहरा किया है, जिसमें दूसरी सियासी जमातों ने भी हिस्सा लिया है। गाफिरा कादर की रिपोर्ट में देखिए कि आखिर मामला क्या है। ये जो आप इतनी गाड़ियां कतार में देख रहे हैं, ये सब जंतर मंतर की तरफ जा रही हैं। इनमें मौजूद हैं इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के सियासी रहनुमा, जो आज स्टेटहुड की बहाली के लिए एहतजाज अब जंतर मंतर पर करने जा रहे हैं। जम्मू और कश्मीर को हासिल रियासत का दर्जा 2019 में ख़त्म कर दिया गया था और उसे 2 यूनियन टेरिटरीज़ में तकसीम कर दिया गया था। उसी वक्त नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली बीजेपी की हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 370 को भी ख़त्म कर दिया था, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर को खुसूसी इख्तियारात हासिल थे। आज ये एहतजाज का कॉल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है। कांग्रेस और CPIM दोनों इस एहतजाज में शामिल हो रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब ऑपोजिशन पार्टीज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने इस प्रोटेस्ट में शामिल ना होने का फैसला कर लिया। इस बार इस प्रोटेस्ट की क्या अहमियत है आपके लिए? हम अपना हक मांग रहे हैं। हम मरकज़ी हुकूमत को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए हुए वादे याद दिला रहे हैं, बिलखसूस वो वादा जो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया गया था कि इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा मिलेगा। अब लगभग 2.25 साल हो गए इलेक्शन किए हुए, लेकिन अभी भी मरकज़ी हुकूमत अपना वो वादा पूरा नहीं कर रही है। Why only statehood? People are asking Article 370 क्यों नहीं? Article 370, very simply, asking for it from the government that took it away and linking statehood to it is to do the BJP a favor. They are looking for an excuse to deny us statehood. Everything in its own time. This assembly, the Jammu and Kashmir Assembly, passed a resolution demanding our rights and our special status be restored to us. We are committed to that. But at the moment, we believe that it is important to hold the union government to its promise. They have not promised us 370, but they have promised us statehood. Statehood will be a way in which we can protect some of those things that are endangered right now. Obviously,
the struggle to restore what was taken away from us on the 5th of August 2019 will not stop. But this is the first step in that direction. तो आप कह रहे हैं कि आप आर्टिकल 370 की मांग करेंगे? हमने कब उस पे खामोशी की? ऑपोजिशन से पूछिए, क्या ये वो असेंबली नहीं है जिसने रेजोल्यूशन पास कराया, जिसने स्पेशल स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज की बात की, और वो ऐसा रेजोल्यूशन है जो मरकज़ भी मजबूर रही उसको नज़रअंदाज नहीं कर सके। कभी ना कभी मरकज़ की हुकूमत, चाहे ये हुकूमत या इसके बाद जो हुकूमत आएगी, किसी ना किसी हुकूमत को हमारे साथ बैठना होगा। जब वो बैठेंगे तो ज़रूर उन सब चीज़ों पे बात करेंगे जिसके लिए जम्मू कश्मीर असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया। जंतर मंतर पर कुछ वक्त एहतजाज करने के बाद इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के सियासी रहनुमा अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आ रहे हैं। हालांकि अभी भी वहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन के क्लब अंदर देखें तो वहाँ भी कुछ लीडर्स अभी मौजूद हैं। वहाँ हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फ़ारूक अब्दुल्ला से बात की और उन्होंने हमें बताया कि हुकूमत की तरफ से अभी भी कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर की तारीखी शनाख्त के बारे में बहस एक बार फिर खबरों में है, खास तौर पर इंडिया से आने वाली इन रिपोर्ट्स के बाद जिनमें दावा किया गया कि हुकूमत पंजाब ने तकसीम हिंद से पहले सड़कों और मोहल्लों के जो नाम राई थे उन्हें बहाल कर दिया है। लेकिन क्या वाकई कोई सरकारी तब्दीली अमल में आई है? सरकारी रिकॉर्ड क्या बताते हैं? ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं? और क्यों लाहौर के बहुत से कदीम नाम आज भी अवामी याददाश्त में जिंदा हैं? जानिए शुमाइला खान से। इंडियन मीडिया में एक खबर बहुत ज़ोर शोर से चलाई गई कि पाकिस्तान में पंजाब की सरकार ने लाहौर के पुराने इलाकों, सड़कों और चौकों के नाम, वो नाम रिस्टोर कर दिए हैं जो कि हिंदू, सिख और कॉलोनियल दौर में राइज थे। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? मीडिया में ही ज़्यादा मैंने हाइप देखी, और इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि नाम जो हैं ये प्री पार्टीशन के हैं पुराने, और लोगों की एक एफिलिएशंस भी हैं इन नामों के साथ, स्पेशली अक्रॉस द बॉर्डर, और इसके साथ एक रिलीजियस सेंटिमेंट अटैच है। ठीक है, इंडिया वाली साइड पे भी, हमारे वाली साइड पे भी, इन चीज़ों की वजह से शायद इसको ज़्यादा हाइप मिली, बट सो फार अभी इसमें कोई डेवलपमेंट हुई नहीं। सड़कों पर लगे साइन बोर्ड्स बताते हैं कि माजी में हुकूमत ने पार्टीशन से पहले के नाम बदलकर नए नाम रखे, लेकिन सरकारी तौर पर यह काम मुकम्मल नहीं किया गया। डीसी ऑफिस लाहौर से हासिल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि सिर्फ एक जगह निकलसन रोड को नवाबजादा नसरुल्लाह खान रोड का नाम दिया गया, और अब पार्टीशन से पहले वाले नाम बहाल करने पर बात चल रही है। इलाकों, सड़कों और चौकों के नाम बदलना तो निस्बतन आसान है, लेकिन असल मुश्किल है कि इन नए नामों को लोगों की रोज़मर्रा मेमोरी का हिस्सा बना दिया जाए। इसीलिए सालों पहले ये साइन बोर्ड्स जो हैं वो लगाए गए, जिसमें नया नाम और पुराना नाम, जैसे कि धर्मपुरा का नाम मुस्तफ़ाबाद रखा गया, और ये दोनों साइन बोर्ड्स लगाए गए ताकि लोगों की मेमोरी का हिस्सा बन सकें। लेकिन हम देखते हैं कि लाहौर में लोगों को अपने इलाकों के पुराने नाम ज़्यादा याद हैं, या फिर वो दोनों नाम एक साथ लेते हैं। मुस्तफ़ाबाद ये लोगों के मुंह पे नहीं चढ़ा। वो देखिए ना, सामने बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड पे लिखा है धर्मपुरा, आगे ब्रैकेट में लिखा है मुस्तफ़ाबाद। तकरीबन 95% लोग जो है वो धर्मपुरा ही बोलते हैं। मैंने जब होश संभाली इस्लामपुरा भी कहते थे, लेकिन ज़रा ये कृष्ण नगर से मशहूर है। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, जो है ना भाई वही रहना है। काफ़ी बाजार है ये, जैसे कि संतनगर है, ये नीरीबाड़ चौक, फिर उधर भगवानपुरा, इससे अगला जो रोड है वो जेसमा रोड है, सिख खोता सिंह रोड, और नेहरू पार्क आ जाता है, अब्दाली चौक आ जाता है, चौहान रोड आ जाता है। वो जो सामने बिल्डिंग है ना, उसका नाम है लक्ष्मी, वो पुरानी बिल्डिंग है, और लक्ष्मी चौक उसकी वजह से ये मशहूर है। उसके बाद जो नया नाम है ये मौलाना ज़फ़र अली खान, ये इस नाम का कोई नहीं जानता है इस नाम को। 1947 से पहले लाहौर एक ऐसा शहर था जहां हिंदू, सिख, ईसाई और मुसलमानों समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग साथ साथ रहते थे। इसीलिए कई मोहल्लों और सड़कों के नाम उस वक्त के मंदिरों, गुरुद्वारों, मशहूर शख्सियात, ख़ानदानों और बरतानवी दौर की यादगारों से जुड़े हुए थे। लाहौर की गलियों में ये तारीख़ आज भी नज़र आती है। एक लेयर्स ऑफ हिस्ट्री है जो इस खित्ते पर है, तो उस लेयर्स को हम कभी भी एक स्ट्रोक ऑफ पेन से ख़त्म नहीं कर सकते। दिल्ली दरवाज़ा का नाम है,
आर्किटेक्ट ऑफ लाहौर गंगाराम का लफ्ज़ है। एक एक बिल्डिंग, एक एक कॉलेज, एक एक हस्पताल का नाम जो है वो बदलने पड़ेंगे। तो ये तो फिर एक हम अजीब मसले में फंस जाएंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। और उन लोगों की बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। अब पंजाब की हुकूमत लाहौर के पार्टीशन से पहले वाले नाम बहाल करती है या नहीं, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन एक बात साफ है कि बंटवारे के तकरीबन 8 दिहाइयों बाद भी पार्टीशन से पहले के नाम ना सिर्फ साइन बोर्ड्स और रिकॉर्ड्स में, बल्कि लाहौरियों की याददाश्त और रोज़मर्रा की ज़ुबान में भी जिंदा हैं। इंडिया में वजीर तालीम के इस्तीफे को लेकर काकरोच जनता पार्टी की तरफ से बुलाए गए एक मुजाहरे में दिल्ली में पार्लियामेंट के करीब हजारों अफराद जमा हुए थे। इस मुजाहरे में शरीक लोगों पर लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। मजीद तफसील गाफिरा कादिर से। ये जो आप आज इतनी भारी भीड़ देख रहे हैं, इसकी वजह है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की तरफ से दी गई हुई कुछ दिन पहले पार्लियामेंट मार्च की कॉल। अभी मैं इंडियन पार्लियामेंट के करीब खड़ी हूँ और यहाँ मुल्क भर से काफ़ी लोग इस एहतजाज में शिरकत करने के लिए आए हैं। ये वही प्रोटेस्ट है जिसमें समाजी कारकुन सोनम वांगचुक भी मौजूद थे और कुछ तलबा भी उनके साथ साथ वहाँ भूख हड़ताल पे बैठे थे, जिन्होंने आज अपना भूख हड़ताल तोड़ दिया। पर उनके जो डिमांड्स थे वो थे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा। सोनम वांगचुक को वहाँ से हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे दिल्ली पुलिस ने जब हॉस्पिटल शिफ्ट किया, उसके बाद अभिजीत दीप के भूख हड़ताल पर बैठे। भीड़ तो काफ़ी देखने को मिल ही रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल हुआ और आंसू गैस का भी इस्तेमाल हुआ। बहुत खराब महसूस कर रहे हैं, अपने ही देश में ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे हम गुलाम हो गए। चारों तरफ से फोर्स ने हमें घेर रखा है, बहुत खराब फील हो रहा है। क्या संसद में जाने का हक हमारा नहीं है? आम जनता होने के नाते हमें संसद जाने का हक नहीं बनता? क्या वहाँ ये सारे पॉलिटिकल पार्टी संसद में बैठेंगे? जस्ट बिकॉज उन्होंने 20वें दिन जो है सोनम वांगचुक जी को डिटेन कर लिया, जो कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक देश में दिखाता है कि किस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है। यही जब मैं पीछे मुड़ के अन्ना आंदोलन में देखता हूँ तो तीसरे दिन गवर्नमेंट ने डेलीगेशन भेजा था बातचीत के लिए, लेकिन इस गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा घमंड है। और अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही नहीं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम इस्तीफा मांगते हैं। एक सवाल पिछले काफ़ी दिनों से, जब से ये अनशन शुरू हुआ है, जब से ये प्रोटेस्ट चालू हुआ है, वही पूछा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे तो क्या बदलेगा? एक व्यक्ति के जाने से क्या बदलेगा? आपको क्या लगता है? देखिए, ये शुरुआत होगी। आप सही बोल रहे हो कि क्या बदलेगा, ये शुरुआत होगी। तो इसका अंत किस में होगा? अंत इसका होगा सरकार के सत्ता से उखाड़ फेंकने से, क्योंकि अब ये ज़्यादा दिन की सत्ता नहीं रही है इनकी। ये देश विरोधी सरकार है, जनता विरोधी सरकार है। इसी दरमियान कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने भी अपना हंगर स्ट्राइक ख़त्म कर दिया है। इस मौके पर दीपके के साथ सोनम वांगचुक की अहलिया गीतांजलि जे आंगमो भी स्टेज पर देखी गई। इससे कबल अभिजीत दीपके के वालिद भगवान दीपके ने अपने बेटे के सेहत के बारे में तशवीश का इजहार किया था। दूसरी जानिब सीजेपी के स्पोक्स पर्सन सौरव दास और आशुतोष रंका ने सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा से मुलाकात करके 3 मुतालबे किए, जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सोनम वांगचुक के रिलीज़ के मुतालबात शामिल हैं। जिसके बाद मरकज़ी वज़ीर ने एक्स पर पोस्ट किया कि मैंने तमाम मुजाहिरीन से दरख्वास्त की है कि वो अपना प्रोटेस्ट ख़त्म करें और आम हालात को बहाल करने में इंतज़ामिया की मदद करें। बांग्लादेश में गुज़िश्ता साल पेश आने वाले अलमनाक फ़िज़ाई हादसे में, जिसमें फ़िज़ाइया का एक तरबियती तैयारा स्कूल की इमारत पर गिरने से 36 अफराद जान की बाजी हार गए थे, इसकी एक गैर शाया शुदा सरकारी तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। BBC न्यूज़ बंगला की हासिल करदा इस रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की एक बड़ी वजह तैयारे का नामुनासिब ज़ाविये पर उड़ाया जाना था, जबकि रिपोर्ट में तरबियती निज़ाम, निगरानी और इंस्ट्रक्टर्स के तजर्बे से मुतल्लिक मुमकिन खामियों की भी निशानदेही की गई है। आखिर इस तहकीकाती रिपोर्ट में क्या इंकशाफात किए गए हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। तैयारे का एक टुकड़ा मेरे बेटे के सर से टकराया और वो इसके दिमाग तक जा पहुंचा।
اب جب بھی مجھے کسی طیارے کے گزرنے کی آواز آتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ میرے سینے سے گزر رہا ہو۔ روبیل کے بیٹے تنویر کی ہلاکت بنگلہ دیش کی تاریخ کے بدترین فضائی حادثات میں سے ایک میں واقع ہوئی۔ ڈھاکہ کے ایک اسکول سے فضائیہ کا تربیتی طیارہ ٹکرانے کے نتیجے میں کم از کم 36 افراد ہلاک ہوئے۔ پائلٹ ایک معمول کی فضائی مشق کر رہا تھا۔ اسے وہاں تک جانا اور واپس آنا تھا، ادھر سے مڑ کر طیارے کو لینڈ کرنا تھا۔ یہ اس کی پہلی تنہا پرواز تھی، اس لیے اسے صرف یہی کرنا تھا۔ بی بی سی نیوز بنگلہ کو اس حادثے سے متعلق سرکاری تحقیقاتی رپورٹ کی ایک کاپی حاصل ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پائلٹ توقیر اسلام نے طیارہ جس اینگل پر اڑایا اس سے طیارے کے سٹال ہونے کا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر پرندوں کی وجہ سے پائلٹ کے لیے طیارہ دوبارہ قابو میں لانا ممکن نہیں رہا۔ رپورٹ میں پائلٹ کی صلاحیت، نگرانی اور ٹریننگ میں خامیوں کے متعلق خدشات بھی ظاہر کیے گئے ہیں۔ تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ اسکول کی عمارتوں کے پاس ساختی مسائل ممکنہ طور پر اس حادثے کی شدت میں اضافے کا باعث بنے۔ مائل سٹون اسکول اینڈ کالج کی عمارتیں تعمیراتی ضابطوں پر عمل درآمد میں متعدد خامیوں کا شکار تھیں۔ اسکول کے مشیر کا کہنا ہے کہ حکام سے عمارت تعمیر ہونے کے بعد منظوری لے لی گئی تھی۔ دوسری جانب بلڈنگ اتھارٹی RAJUK کے مطابق انہوں نے بے قاعدگیوں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت اور فضائیہ نے اس معاملے پر تبصرے کے لیے BBC کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران تیز بارشوں اور فلیش فلڈ کے نتیجے میں مختلف حادثات میں 12 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے ہیں۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یعنی PDMA کے مطابق اموات گھروں کی چھتیں اور دیواریں گرنے اور سیلابی ریلوں میں بہہ جانے کے باعث ہوئی ہیں۔ ہلاک افراد میں 5 مرد 5 بچے اور 2 خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ زخمیوں میں 10 مرد 4 خواتین اور 4 بچے شامل ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے الیکشن شیڈیول میں تبدیلی کر دی گئی ہے، جس کے بعد اب کشمیر کے 3 ڈویژن میں مختلف تاریخوں میں پولنگ ہوگی۔ میرپور ڈویژن میں پولنگ 27 جولائی کو ہوگی۔ مظفر آباد اور مہاجرین کی 12 مخصوص نشستوں پر پولنگ 2 اگست کو ہوگی، جبکہ پونچھ ڈویژن میں پولنگ 10 اگست کو ہوگی۔ ایک روز قبل پولیس کی جانب سے انڈیا کی کاکروچ جنتا پارٹی یعنی CJP کے حامیوں کے خلاف کارروائی کے باوجود دارالحکومت دہلی میں ہزاروں افراد ایک بار پھر جمع ہو گئے ہیں۔ نوجوانوں کی قیادت میں چلنے والی یہ تحریک تعلیمی اصلاحات اور وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ پیر کے روز ہزاروں نوجوان مظاہرے میں شریک ہوئے اور پابندی کے باوجود پارلیمان کی جانب مارچ کرنے کی کوشش کی۔ مرکزی دلی میں شدید جھڑپیں ہوئی اور پولیس کے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے استعمال سے کم از کم 60 مظاہرین زخمی ہوئے۔ پولیس نے مرکزی احتجاجی مقام پر قائم سٹیج اور عارضی خیمے بھی ہٹا دیے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس کے 118 اہلکار بھی زخمی ہوئے، جبکہ 70 مظاہرین کو حراست میں لیا گیا ہے۔